Everyone, welcome back to PDA classes. Here we are come up with another video. In this video, we are going to learn the new topic, and the topic name is expiratory system. As you know, in the previous video lecture, we have completed the respiration system, and I hope you enjoy the video and you like the video. Now, what we are going to learn, हम इस वीडियो में अब देखने वाले हैं expiratory system. So I hope still the video till the end, and with this video you got or clear all the concept with the crystal and clear way. So don't be pressurize yourself, just keep patient and keep watching my videos for you, that you get all the concept related to biology, not only for your exam but also any of the स्टडी फील्ड और नॉलेजमेंट, और आप 11th 12th में भी हो तो भी आपको यही कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे. सो डोंट वरी एट ऑल. सो हम बिना देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल नाइट के साथ. लोग इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर. देखो, सो नाउ हमारा क्या है एक्सक्रेशन सिस्टम. एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ पे पहले समझना है व्हाट द मीन ऑफ द एक्सक्रेशन. एक्सक्रेशन इज मीन्स टू से नथिंग, इट इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन योर बॉडी. फ्रॉम द बॉडी से, आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का निकालना है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन. ओके, ये तो सिंपल द डेफिनेशन. सो हम एक्चुअल में वेस्ट किसको बोलते हैं, पहले आप वेस्ट को समझिए. वेस्ट क्या कहलाता है? वेस्ट का मीन्स होता है कि आपकी बॉडी में अनवांटेड प्रोडक्ट, मीन्स टू से इट इज मीन्स टू से अनवांटेड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड वेस्ट. क्या हम CO2 को वेस्ट कह सकते हैं? ऑब्वियसली कह सकते हैं, क्योंकि हम इसी को जब भी तो निकालते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में CO2 का यूज होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको रिमूव आउट करते हैं. ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ऑक्सीजन का लेने के बाद हमारी बॉडी में वो कन्वर्ट हो जाता है, इन विच इट इज गोना बी कन्वर्टेड इन द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द बॉडी. सो दैट इज आवर वेस्ट. ओके, सो देयर इज अ मेनी टाइप ऑफ द वेस्ट इन योर बॉडी दैट वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी. सो डोंट बी, just need to be learn what the mean of the excretion. So let's get start the video. देखो, so first of all we have to learn the definition. Excretion is the removal of waste product from the body, as we have already discussed about this. So now excretion ये हमारा है कि हमारी बॉडी में से waste product का निकालना ही excretion होता है. Okay, so here are the some concept. First is the ammonotalism. What the ammonotalism? Ammonotalism is means to say the removal of the waste product from the body in the form of ammonia. देखो मैंने यहाँ राइट लिखा है, क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अमोनिया. इसका मतलब समझना, ammonotalism are such type of the organism which remove the ammonia as a waste product. अपनी बॉडी से अमोनिया निकालते हो वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, that organism is called ammonotalism. Understood? Here what you have to understood, ऐसी कौन सी ऑर्गेनिज्म है, which type of the organism is called ammonotalism. So ammonotalism is nothing which remove the ammonia in our body, that is called ammonotalism. Okay, so what the organism get the name? So example like this, hydra and prawn. So this is the example. hydra और prawn जो होते हैं हमारी बॉडी से, अपनी बॉडी से क्या करते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं. So I hope you got the idea. Now ureotalism. Ureotalism means to say the waste product is urea. Such type of the organisms remove the waste product from our body, that is called ureotalism. Such as, first of all, human, we are also the in the category ureotalism. जैसे कि हमारा फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, all these are in the category of the ureotalism. So आपको याद रखना है ureotalism क्या है, nothing, it is just a remove of the waste product in the form of the urea. Next one is uricotalism. Uricotalism means to say removal of the waste product in the form of the uric acid. Okay, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम स्नेल हो गया, हमारा रेप्टाइल्स हो गए. So all these are category in the uricotalism. Now there is some little bit information about the relation of this. Nitrogen waste removed out from your body. First of all आपको ये याद रखना है कि जो नाइट्रोजनस जितने भी सारे वेस्ट होते हैं आपकी बॉडी से निकालना उनको बहुत ही जरूरी होता है. So it is needed that remove the nitrogenous waste in your body because it is harmful for your body. ठीक है, so नाइट्रोजन वेस्ट आपकी बॉडी से निकाला जाता है. नेक्स्ट वन अगर देखें हम, there are different types of animals in this universe, they remove different type nitrogenous waste. इसका मतलब यहाँ पे जो N लिखा हुआ है इसका मतलब नाइट्रोजन वेस्ट. अगर हम बात करें हमारी इस संसार में, इस यूनिवर्स में, there's a lots of the animals
who remove the different type of the nitrogenous base. Okay, so nitrogen base जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे देखो, अगर हम बात करेंगे सबसे पहला अमोनिया, अमोनोटैलिस में अमोनिया निकालता है, जैसे हाइड्रोप्रोन हो गया हमारा, यूरियोटैलिस नाउ रिमूविंग द यूरिया, जैसे ऑल वी आर ह्यूमंस एनिमल्स, सो ह्यूमन हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, यूरिकोटैलिस में इज द यूरिक एसिड रिमूव, जैसे स्नेल रैपर. सो देयर इज द मेनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म हु रिमूव द बेस प्रोडक्ट एज अ different forms as we are shown here. Now we are going to move on. अभी ये क्या देखा सर आपने क्या? So here we are just we discuss about the little bit concept as we are here. So आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ में definitions लर्न करने का जरूरत नहीं है, आप बचपन से क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो. Removal of the base, removal of the base. Just we have to learn the concept, और concept मीन्स टू हमारी फैक्ट क्या आते हैं हमारे एग्जाम्स में, किस तरीके से पूछता है, तो ये सारे हमें पढ़ना है. तो आपको इतना याद रखना है, बाकी आपको ज्यादा नहीं. सो ये इतना देखा आपने, चलेगा. नेक्स्ट देखते हैं. First of all, you need to understand metabolic waste. What the mean of the metabolic waste? Metabolic waste means to say, it is like a breakdown of the complex organism into simpler, and also the simpler product into complex. So these are of the two types: anabolism, bolism, and catabolism. Catabolism, catabolism. Anabolism का मतलब होता है ऐड करना, मीन्स टू से अगर मैं बात करूं तो सिंपलर प्रोडक्ट का कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में बनता है. ये क्या है? एनाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म का मतलब क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट का सिंपलर में टूटना, सिंपलर में. सो दिस इज कॉल्ड हमारा कैटाबोलिज्म. तो मैंने कहा मेटाबोलिज्म. जैसे हम बात करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, आपने कोई अनवांटेड चीज खा ली और हमारे वो शरीर में चला गया, किडनी से वो फिल्टर होने के बाद ब्लड में जाता है, ब्लड से हमारे रिमूव आउट होता है. तो ये कैसे होता है? तो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर में टूटना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है, तो हमारी मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, हमारे कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपलर बनाना. लाइक जैसे कि हमने पढ़ा था, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट हमारा किस में टूटता है? अगर मैं इसकी सिंपलर की बात करूं, ऑब्वियसली ग्लूकोज में टूटता है. तो ग्लूकोज इसका सिंपलर फॉर्म है. दैट इज द प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू सिंपलर वन. दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट मींस टू से मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ओके, सो अब मैं बात करता हूं आगे. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड. दीज आर द टू थिंग्स which give the what end product when they are going to in the our cell. जब हमारी सेल में जाते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट क्या मिलता है? CO2, H2O एंड ATP इसकी फॉर्म में हमें मिलता है. ये हमने देखा था. जैसे कि हमने अभी सेल की पिछली, अगर आपने चैप्टर देखा हो मेरा, तो मैंने बताया था जब हमारा ग्लूकोज एंटर करता है हमारी बॉडी में, तो यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म में सब कुछ है, तो ये पायरुवेट में टूटता है, फिर एनर्जी देता है. अगर ऑक्सीजन में मिल जाता है तो 38 ATP की एनर्जी की फॉर्म में हमें ये देता है. ये बताया था मैंने. तो सेम एज लिपिड भी करता है हमारा, ये दो. बट अगर मैं बात करूं हमारा प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारा जो होता है, प्रोटीन ज्यादातर तो हमारी बॉडी में टूट जाता है. किस में टूटता है? अगर मैं बात करूं किसमें? अमीनो एसिड में. अमीनो एसिड में टूटता है, ज्यादा हमारी बॉडी कन्वर्ट होता है. बट लिटिल बिट, कुछ सम, ये हमारा अमीनो एसिड पहुंच जाता है कहां पर? लीवर में. ठीक है, अमीनो एसिड क्या, प्रोटीन को ज्यादातर प्रोटीन हमारा टूट के डाइजेस्ट हो जाता है, बट कुछ अमीनो एसिड पूछता है हमारे किसके पास? लीवर के पास. लीवर के पास पहुंचने के बाद लीवर में एक साइकिल होती है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रिन साइकिल. लीवर में चलती है, एक प्रोसेस है जिसका नाम है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो अमीनो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यूरिया में. और यूरिया का फॉर्मूला बोलेंगे NH2NH2. दैट इज कॉल्ड यूरिया फॉर्मूला. नाउ in the form of urea is the base product and it need to be removed out, so it is gonna be in blood. ये ब्लड में जाता है. ब्लड के जाने के बाद ये कहां? किडनी में चला जाता है. अब किडनी में क्या है, इसको क्या करता है? फिल्टर करता है हमारा किडनी. किडनी फिल्टर करने के बाद इसको यूरिन बना देता है, और यूरिन मीन्स टू से ये क्या है हमारा, जो हम क्या है, रिमूव आउट कर देते हैं, जिसको बाथरूम बोलते हो आप लोग. सो दैट इज कॉल्ड यूरिन. यूरिन कहां से आया है? एक बार फिर से देख लो. जो हमारा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमारा टूटा अमीनो एसिड में, लिटिल बिट कुछ हमारा प्रोटीन जो रहता है अमीनो एसिड, वो लीवर तक पहुंचेगा. लीवर में हमारी यूरेथ्रिन साइकिल चलती है, वो पहुंचेगा किसके फॉर्म में? उसको कन्वर्ट कर देगा जो लीवर होगा अमीनो एसिड को यूरिया में. यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड के पास किडनी में, किडनी उसको क्या करेगा? यूरिन में बदल देगा, और यूरिन इज गोना बी रिमूव आउट फ्रॉम योर बॉडी. नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द whole process is gonna be in our body. Mind it? Okay. So now बढ़ते हैं आगे. प्रोटीन इन फॉर्म नाइट्रोजनस बेस्ड यूरिया. अगर मैं बात करूं, जो प्रोटीन होते हैं हमारे, वो किसके फॉर्म में होते हैं? नाइट्रोजनस फॉर्म के. जैसे कि यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2. देखो नाइट्रोजन लगा हुआ है इसमें. सो दैट इज कॉल्ड अवर
urea. Now this is the most important thing. Here we are going to discuss human excretory system consists four part. First, pair of kidney. Second one, pair of ureter. Third one, urinary bladder. And fourth one, urethra. Okay, so what this mean? बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा लेंथी नहीं है, थोड़ा सा वीडियो है। देखो यहाँ बात करते हैं, ये हमारी क्या है, ये किडनी है, ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर लिख रखा है, ये किडनियां है हमारी। ओके, तो अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो ये हमारी इस तरफ की कौन सी हो जाएगी, राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी। ओके ओके, फिर ये क्या है हमारी, इसको क्या बोलते हैं, फिर जो नलियां इसमें लगी हुई है इसको कहा यूरेटर्स। तो पेयर ऑफ किडनी, ये मैंने जो लिखा था पेयर ऑफ किडनी, तो ये पेयर ऑफ यूरेटर्स, पेयर ऑफ यूरेटर्स। फिर इसके बाद क्या है, ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है यूरिनरी ब्लैडर, इसको यहाँ पे हमारा क्या है, यूरिन कलेक्ट होता है, यार द कलेक्शन ऑफ यूरिन, कलेक्शन of urine, mind it, here collection of urine. And this is the urethra. Urethra is the last part where the remove out of urine. So this is our little bit rough diagram of our kidney, ureter, urinary bladder. अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है सीडीएस के और एसएससी में पूछा गया था 2022 और एसएससी में भी पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन, कि टेल द excretory part in the इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स टू से पाथवे बताना था। सबसे पहले क्या होगा, पेयर ऑफ किडनी में हमारा पूछा गया था कि यूरिन हमारा कहां कहां से होके जाता है, सबसे पहले किडनी में आएगा, किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से हमारा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से हमारा यूरिनरी ब्लैडर से हमारा यूरेथ्रा। सो दिस इज द पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस एंड दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, यू हैव टू मार्क दिस। सो आपको इतना याद करना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ये जो मैंने लिटिल बिट बताया है, इस इतना है जो हमारा एक्सप्लेनेटरी पार्ट में हमें जो इंट्रो देना था, पढ़ना था, और यहीं से आपके क्वेश्चन पुट अप होना चालू होते हैं। एक ये वाली प्रोसेस आपको अच्छे से लर्न करनी है, एंड सेकंड वन दिस इज द पार्ट, एक्सप्लेनेटरी पार्ट जो हमने यहाँ देखे थे। अब जो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा, वी विल डिस्कस अबाउट द लेटर ऑन प्रोसेस क्या होती है हमारी, और किडनी के पार्ट के थोड़ा जानेंगे कि हमारी ये क्या कहलाती है, हमारी रीनल आर्टरी कहलाती है, रीनल वेन कहलाती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिए रहता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। तो ये सब बात करने वाले हैं आगे। आई होप आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहें। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।